Good morning, student. Today my topic related to the yoga and lifestyle, class 12, unit 3 is a diabetes. What is a diabetes? और आजकल की जो समय है उसमें डायबिटीज कितनी खतरनाक होती जा रही है, आज हम समझेंगे डायबिटीज और इसको कैसे क्योर करेंगे आसन के द्वारा, वो हम देखेंगे। भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन, पवनमुक्तासन एंड अर्धमत्स्येंद्रासन। There are the 5 lifestyle disease: diabetes, back pain, asthma, cervical spondylitis. These are lifestyle disease. And इसमें किस तरीके से हम क्वेश्चन आएंगे वो भी हम देखते हैं. Let's see. Let's start my topic related to the diabetes and curing by asana. Obesity, this is a lifestyle disease. So diabetes is the really a very dangerous condition. Diabetes is not controlled, it can lead to renal failures, loss of vision, amputations of limbs and cardiovascular disease. Diabetes is such a disorder that it causes sugar to build up in our blood streams instead of being used by the cell in our bodies. In fact, our body uses a hormone, कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन, to control the level of sugar in our blood. When our body does not produce sufficient amount of insulin, or when insulin does not work properly, diabetes occurs. These are two types of the diabetes, type 1 and type 2. In type 1 diabetes, the pancreas gland does not produce insulin. Hence, injection of the insulin is required daily for its treatment. In type 2 diabetes, the body does not produce sufficient amount of insulin. Hormone or the hormone is produced sufficiently, but it is not used properly by the body. There are the frequent cases of type 2 diabetes whereas the cases of type 1 diabetes are rare. So there are the two types of diabetes, type 1, type 2. किस तरीके से वो हमारे शरीर को जो है नुकसान पहुंचाता है, टाइप 1 और टाइप 2, वो हमने देखा. नेक्स्ट, द फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, अर्ज टू यूरिनेट फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ हैंड and fit, blood visions, excessive weight gain or weight loss, unhealing wound, etc. कोई चोट लग जाती है तो डायबिटीज के दौरान जो है वो जल्दी से हील नहीं होती है, भर नहीं पाती है. अगर कहीं से कट जाए तो खून बहता रहेगा, हीट नहीं होगा जब तक उस पर जो है हम उसको ब्लड जो डायबिटीज है उसको हम कंट्रोल नहीं कर लेते. अनहीलिंग वाउंड are common symptoms of diabetes. People with obesity usually fall prey to diabetes. Diabetes can be prevented as well as cured. It is the following asana are performed regularly. These asana the Bhujangasana, Paschimottanasana, Pavanmuktasana, Ardhasana. इससे पहले हमने जो क्लास पढ़ाई थी उस क्लास में हमें ओबेसिटी था.
ओबेसिटी में जो है अर्ध मत्स्येंद्रासन ये कॉमन है, उसमें भी अर्ध मत्स्येंद्रासन था, इसमें भी अर्ध मत्स्येंद्रासन है। हम ओबेसिटी के लिए भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन और पवनोत्तासन कर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए हम लोग जो है ओबेसिटी में वही आसन जो मैंने उस टाइम बताए थे वो आपके उसमें रहेंगे। देखिए देख लेते हैं उसको। There are the for obesity cure the asan first the vajrasan, ardhastasan, trikonasana, ardha mत्स्येंद्रासन। But diabetes for diabetes bhujangasana, paschimottasana, pavanottasana and ardha mत्स्येंद्रासन। First भुजंगासन। भुजंगासन द जो सांप के समान जो आकृति है, भुज के समान जिसे हम सर्प कहते हैं और कोबरा पोज भी हम इसको बोलते हैं। तो भुजंगासन को देखते हैं और इसकी वीडियोस भी हम देखेंगे भुजंगासन को कैसे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर ऑफ द भुजंगासना। इन दिस आसना द शॉर्ट शेप ऑफ द बॉडी रिमेन लाइक अ स्नेक, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड भुजंगासना। समझिए ना। इन दिस आसना shape of the remain like a snake। स्नेक कोई भी स्नेक हो सकता है, कोबरा है, अजगर है, किस तरह का भी स्नेक है, वो स्नेक के समान अपनी आकृति है। आकृति मतलब शेप ऑफ द बॉडी रिमेन लाइक अ स्नेक, दैट व्हाई इट इज कॉल्ड भुजंगासना। इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस आसना lay down on the belly on the ground, ग्राउंड के ऊपर मैट बिछाकर on this mat, keep your hand near the shoulder, keep your leg close together। Now stretch up your arms slowly. Raise the chest. Your hand should turn backward. Keep these positions for some times। थोड़ी देर रुका रहना है, होल्ड करना है उसको। Then get back to the normal positions। For good result, perform this asana 3 to 5 times। कौन सा है? भुजंगासना। ओके, भुजंगासना। बेनिफिट ऑफ द भुजंगासना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हम साथ क्वेश्चन भी करते जाते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द भुजंगासना, ये व्हाट इज द प्रोसेसिंग ऑफ द भुजंगासना। पर प्रोसेसिंग बताइए अभी आपको। आफ्टर देन द भुजंगासन बेनिफिट एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। आफ्टर देन द कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किसको नहीं करना चाहिए। बेनिफिट क्या है इसके? फर्स्ट भुजंगासना बेनिफिट, स्ट्रेंथ द मसल्स ऑफ हैंड। हाथ की जो मसल्स होती हैं वो मजबूत बनती हैं इस आसन को करने से। मसल्स, नर्व्स वो जो स्ट्रॉन्ग होती हैं। और इट क्योर गैस डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशंस एंड इंडिजेशंस जो है वो क्योर होता है। स्टमक की जो प्रॉब्लम है, डिजीज है, वो दूर होती है भुजंगासन से। इट मेक द वर्टेब्रा कॉलम फ्लेक्सिबल ऑफ थिन। वर्टेब्रा कॉलम जो स्पाइनल कॉर्ड है वो फ्लेक्सिबल होगी और पतली होगी, उसमें एक्स्ट्रा फैट नहीं चढ़ेगा अगर हम भुजंगासन को करते रहें। और बैंड होने में आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, डैमेज नहीं होगी, स्टिफनेस नहीं आएगी, वर्टेब्रा में स्पाइनल मजबूत रहेगी, स्टिफनेस नहीं होगी इसमें। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि बॉडी में अगर स्टिफनेस आ जाती है तो कोई भी चीज जो बॉडी होती है वो झुकती नहीं है, बैंड नहीं होती है, पर वो टूट जाती है। तो हमारी बोन्स के लिए ये बेनिफिट नहीं है।
तो कोई भी बोन्स हैं, चाहे वो वटेवर से रिलेटेड बोन्स हैं और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बोन है, चाहे ये बैक स्टिपुला पार्ट जो है वो टाइट ना हो, मूवमेंट्स नहीं होते हैं कंधों में, और स्टिपुला भी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, ये सब आसन से आते हैं। नीज कई बार जो है स्टिफ हो जाती हैं, और कई सारी बोन्स ऐसी जो है जो मूवमेंट, नेक जो है वो रोटेट नहीं कर पाता है प्रॉपर, क्योंकि स्टिफनेस हो जाती है, इसमें मांस चढ़ जाता है, चर्बी चढ़ जाती है, या फिर इसमें कैल्शियम इतना हो जाता है कि वो रोटेट नहीं करती हैं, टूट जाती हैं या खराब हो जाती हैं या जाम हो जाती हैं। ठीक है, तो इट इज क्योर द डिजीज ऑफ लीवर, इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन कितना महत्व है हमारे पूरे शरीर में, ब्लड हमारा जाता है हार्ट में, वापस प्योरीफाई लंग्स से होकर जो है दोबारा पूरी बॉडी में जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर बनता है। कौन से आसन से? भुजंगासन। नेक्स्ट, इट्स क्योर टू डिसऑर्डर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, इट्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड एसिडिटी, इट्स एलिविएट्स ओबेसिटीज। ये हमारी जो है बेनिफिट्स हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस। बेनिफिट आप समझ में आ गया, क्वेश्चन आया था व्हाट इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द भुजंगासन, इसको भी हम समझ लेते हैं। सो कॉन्ट्राइंडिकेशंस, this asan should be avoided by individuals who suffer from hernia, back injuries, headache, and recent abdominal surgeries. Abdominal पेट का जो हिस्सा होता है, abdominal बोलते हैं उसको। नंबर 2, pregnant women, जो गर्भवती महिला है, pregnant women should not be perform this asana, और अगर करें तो मतलब इसको नहीं करना है भुजंगासन को, प्रेग्नेंट है, क्योंकि पूरा जोर जो है आपकी एब्डोमिनल पोर्शन में पड़ेगा, फ्रंट पोर्शन में पड़ेगा, आपकी बैली पोर्शन में पड़ेगा, और ये सबसे खतरनाक हो सकता है प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए। चलिए देखते हैं भुजंगासन कैसे करना है, और इस वीडियो के माध्यम से आप समझें कि भुजंग आसन करने का क्या तरीका है और कैसे इसको प्रेजेंट करना है।
ये था हमारा जो है भुजंगासन, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि इसको जो है मैं आपको करके प्रॉपर तरीके से बताया भी है। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है कि, और मेरे समझ में क्या नहीं आता है, इसको तो देख कर ही हम कर सकते हैं, लेकिन सांस लेना और छोड़ना, डीप इनहेल डीप एक्सहेल, इसको हमें देखना है कि उठते टाइम और रिलीफ होते टाइम जो है किस प्रकार से सांस को छोड़ा जाए। नेक्स्ट आसन हमारा पश्चिमोत्तासन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फिजिक एंड your muscles, stomach, abdominal part, chest part and spinal part for very important was the पश्चिमोत्तासन। बहुत ही सभी आसन इंपॉर्टेंट हैं आपकी शरीर के लिए, पर पश्चिमोत्तासन इज द बेस्ट। कैसे प्रोसीजिंग है इसको देखते हैं। सिट ऑन ग्राउंड विद लेग फॉरवर्ड, द hold the toe of your feet with the fingers of both hands. Then breathe out slowly and try to touch the knees with your forehead. After that, breathe in the slowly, raise your that upward and come to prayer positions. Perform this asana at least 10-20 times. कभी क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द प्रोसीजिंग ऑफ द पश्चिमोत्तासन, ये करने का तरीका क्या है? तो यही है, सिट ऑन द ग्राउंड विद द लेग फॉरवर्ड, देन होल्ड द टो ऑफ योर द फीट विद द फिंगर ऑफ द बोथ हैंड, ब्रीथ आउट स्लोली एंड ट्राई टू टच द नीज with your forehead. After the breath, slowly raise your hand upward and come to the prayer positions. Perform this asana at the left at least 10-20 times. Benefit. What is the benefit is the contraindication. कई बार दोनों चीजें रहती हैं कि what is the benefit of the and benefit and contraindication of Paschimottanasana. Number one, it alleviates gas troubles. It prevents the easily ossifications of bones. It is a good remedy of the constipations. It is help to overcome cerebral menstruation disorder. And number 5 point, it is due to relief in the sciatica, backache and asthma. सांस लेना और छोड़ना, अस्थमा की जो प्रॉब्लम होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा जो है वो कोई कमी की वजह से हो जाती है, पोल्यूशन की वजह से होती है अस्थमा। बैक स्पाइनल कॉर्ड के रिलेटेड बैकबोन जो है पेन करती है, दिस इज बैकबोन प्रॉब्लम्स। एंड साइटिका इज अ नर्व ऑफ थाइस, द लेफ्ट लेग एंड बीटीपी जाती है और एडी तक जो है आपके हील तक वो पहुंचती है, तो दिस इज साइटिका वेन्स, और इसी में ही पेन होता है सबसे ज़्यादा। और ये किस लिए होता है कि स्पाइनल आपकी जो है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती, वहाँ कहीं ना कहीं जो है पेन रहता है स्पाइनल में, तो साइटिका का पेन भी उसी की वजह से होता है। इट इज रिड्यूस ओबेसिटी, इट इज हेल्पफुल इन द ट्रीटिंग एब्डोमिनल डिजीज। और नंबर 8 इज इट इज हेल्पफुल इन द क्योरिंग स्किन डिजीज। एक पॉइंट है इसमें 7 जो है, इट इज हेल्पफुल इन द ट्रीटिंग एब्डोमिनल डिजीज। पेट की जो समस्या है, जब हम पश्चिमोत्तासन करते हैं तो हम सामने की तरफ बैंड होते हैं, अंगूठे को हम पकड़ लेते हैं, टो को हम पकड़ते हैं और फोरहेड जो है नीज पे लगाते हैं, तो पेट उसमें जो है कॉन्टिजेशन होता है, इसमें जो है वो मतलब उसमें जो भी कार्बन है, जो भी उसमें जो है जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है जो वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, चाहे वो मसल्स हैं, चाहे फैट है, चाहे वहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वो उसको प्योरीफाई करता है, उसको मतलब क्योर करता है, उसकी डिजीज को दूर करता है जो उसमें हो जाती है। ठीक है, एक इसमें पॉइंट था कि इट इज अ गिव रिलीफ इन द साइटिका पेन, बैक पेन एंड अस्थमा। तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी भी जब ये आसन के बारे में पूछ लेते हैं कि कुछ बेनिफिट बताइए इन आसनों का, पश्चिमोत्तासन हो गया, भुजंगासन हो गया, तो आपको इनके बेनिफिट बताने हैं। एक लास्ट पॉइंट है, वर्टेब्रा बिकम फ्लेक्सिबल एंड हेल्दी।
it is helpful in the curing skin disease. ओके, अब हम देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। लगभग कॉन्ट्राइंडिकेशन इज 1 and 2 and 3 पॉइंट्स लगभग है उसमें। तो पश्चिमोत्तासन के जो है हम कॉन्ट्राइंडिकेशन में देखते हैं कि नंबर 1 इज इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द अनलार्ज्ड लीवर और स्प्लीन और एक्यूट अपेंडिक्स, यू शुड नेवर डू दिस आसना, वो इनको नहीं करेंगे। नंबर 2 पॉइंट, अवॉइड डूइंग दिस आसना इफ यू सफर फ्रॉम अस्थमा और एनी respiratory disease. Number 3, if you have any back or spinal problems, make sure that you are perform this asana only under expert guidance. ये हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन। लास्ट वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं, वही इफ यू हैव टू एनी बैक एंड स्पाइन प्रॉब्लम, मेक श्योर दैट यू आर परफॉर्म दिस आसना ओनली अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस। तो उसको करना है। ये हमारा जो है पश्चिमोत्तासन है। पश्चिमोत्तासन को देखते हैं कैसे करता है, करना है। वीडियो के माध्यम से समझेंगे भी और करने की कोशिश करेंगे।
ये था हमारा जो है पश्चिमोत्तासन. नेक्स्ट इज द पवन मुक्तासन, द थर्ड पॉइंट. देयर आर द 4 आसना रिलेटेड टू द एवरी डिजीज, और उसी को इतना ही हम करेंगे तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा. नेक्स्ट इज द पवन मुक्तासन. व्हाट इज द प्रोसीडिंग? फर्स्ट, lay down on your back on a plain surface. मैट पे लेटना है, विदाउट मैट नहीं लेटना है. मैट कुशन होना चाहिए स्पाइन के नीचे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी कहीं ना कहीं जहाँ पे स्टिफनेस होगी बैक बोन में या बैक मसल्स में, वहाँ पे कहीं ना कहीं पेन या कोई ऐसा स्प्रेन पड़ जाएगा जिससे आप कुछ दिनों के लिए जो है इंजर्ड रहेंगे या पेन फुल रहेंगे. तो मैट जरूर रखें, कुशन जरूर रखें, ले ऑन द ग्राउंड मैट, और उसके बाद हम आसनों को करना है. प्रोसीडिंग, lay down on your back on a plain surface on the mat. Keep your feet together and place your arm beside your body. Take a deep breath. When you exhale, bring your the knees towards your chest. Deep inhale and deep exhale. At the time, press your thumb on your abdomen. Clasp your hand around your legs. Hold the asana when you breathe normally. Every time you inhale, ensure that you loosen the grip. Exhale and release the pose after you rock and roll from side to side about 3 times. ये हमारा पवन मुक्तासन. This is the processing of the पवन मुक्तासन, and next is the benefit of the पवन मुक्तासन. बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, हमारी फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है. एग्जाम के लिए तो है ही है, लेकिन हम अपने फिजिक और अपने शरीर के लिए जो हम सोचते हैं उसके लिए बेस्ट है. It eases the tensions in the lower back. जो लोअर बैक है आपकी, एक तो अपर बैक है, बैक फर्स्ट तो अपर बैक, मिडिल बैक एंड लोअर बैक. नीचे वाली जो बैक है उसके लिए बेस्ट है लोअर बैक. इट इनहेंस द ब्लड सर्कुलेशन इन द pelvic एरिया. pelvic एरिया जो आपका हिप्स वाला पोर्शन है, बाहर तो मसल्स हैं लेकिन अंदर की जो बोन्स हैं वो pelvic बोन है, और pelvic एरिया भी उसको बोला जाता है, हिप्स वाले जो साइड है. Number 3, it is help in the reducing the fat of thighs, buttock and abdominal area. Number 4, it strengthens the abdominal muscles. It also measures that intestines and organs of the digestive systems, which help in the releasing the gas and thus improve digestion. It relieves constipations. Contraindications. If you are suffering from heart problem, hyperacidity, high blood pressures, slip disc and hernia, you should avoid this asana. Number 2, pregnant women do not pregnant women should avoid doing this asana. If you have had abdominal surgeries recently, you should avoid performing this asana. And number 4 is the individual suffering from the piles should avoid this asana. इन चीजों में ये जो है आपको नहीं करना है. प्रेग्नेंट वीमेन हो गई, पाइल्स की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, लो बीपी है, कोई सर्जरी हुई हो आपकी एब्डोमिनल की. एब्डोमिनल ये पेट वाला जो हिस्सा है, इसके अंदर का पार्ट जो है एब्डोमिनल बोलते हैं, आगे सामने स्टमक है. एंड हर्निया की जो प्रॉब्लम है उसमें भी, और हाइपर एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, इसमें आपको नहीं करना है. और देखते हैं पवनमुक्तासन कैसे करेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से.
नेक्स्ट आसन अर्ध मत्स्येंद्रासन। 4th पॉइंट अर्ध मत्स्येंद्रासन, हमने इसको जो है ओबेसिटी में पढ़ा था, इस कॉमन आसन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ भी है। प्रोसीडिंग ऑफ द अर्ध मत्स्येंद्रासन, द लिफ्ट heel is the kept under the right thighs and right leg is the cross over the left thighs. After that, hold the right toe with hand and turn your head and back to the right side. In these positions, move this trunk sideways. Then perform this same asana in the reverse positions. Benefit देख लेते हैं. It keep gallbladder and the prostate gland healthy. It elevates digestive alignment. It regulates the secretions of adrenalines and bile, and thus is the recommended in your yogic management of diabetes. It enhances the stretchability of back muscles. It is also helpful in treating bronchitis, constipations, menstrual disorder, urinary tract disorder and the cervical spondylitis. इन लोगों को नहीं करना है, इन पे बेनिफिट पहुंचता है। अब ये है बेनिफिट्स। आफ्टर देन कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन, वीमेन हु आर 2 and 3 months प्रेग्नेंट शुड अवॉइड दिस आसना। ये आसन को नहीं करना है जो प्रेग्नेंट वीमेन है, क्योंकि स्टमक बैंड होता है, तो जब बैंडिंग है तो फिर उसमें नहीं करना है हमको। प्रेग्नेंट में प्रेगनेंसी के टाइम नहीं करना है। दिस इंडिविजुअल हु सफर फ्रॉम द पेप्टिक अल्सर, हर्निया एंड हाइड्रोफोथेरिज्म should perform this asana only under expert guidance. Number 3, the individuals who have the problem of sciatica or slip disc may benefit from this asana, but they need to take great care while doing this asana. और ये हमारे जो हैं इसमें 4 आसन थे। There are the 4 asana: Bhujangasana, Paschimottanasana, Pavanmuktasana, Ardha Matsyendrasana for the diabetes. So topic is related to the diabetes is completed, and I will give the some assignment related to this topic. What is the Bhujangasana? What is the Paschimottanasana? What is the Pavanmuktasana? What is the Ardha Matsyendrasana? What is the diabetes? Define diabetes, and what is the contraindication of the Paschimottanasana? Is this type of question आ सकते हैं ये एग्जाम में। सो आपको इसको तैयारी रखनी है। मैं क्वेश्चन इस तरह दूंगा और एमसीक्यू भी यहीं से ही बनने हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन भी इसमें से आएंगे, जैसे कि सर्प आसन कौन सा है। देयर आर द 4 पोजीशंस, देयर आर द 4 आसना: भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन, पवनोत्तासन, अर्ध मत्स्यासन। तो भुजंगासन इज द सर्प शेप आसन। सो रिलेटेड टू टॉपिक कंप्लीटेड। सो आई विल गिव द असाइनमेंट next day. Thank you. God bless you.